آگے بڑھتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے 2 حلقوں میں شامل پی ایس 120 کے مکین درجنوں بلدیاتی مسائل سے دوچار ہیں۔ اے این پی کے پلیٹ فارم سے میدان میں اترنے والے عبدالکبیر کاکڑ کہتے ہیں کہ کامیابی ملی تو سب سے پہلے قلت آب کا خاتمہ کریں گے۔ مزید بتائیں گے رضوان احمد۔ جی بالکل، صوبائی اسمبلی کے حلقہ 120 پی ایس 120 سے میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں، جو کہ قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 245 اور 246 کا حصہ ہے۔ اور یہاں رجسٹرڈ ووٹرز کی اگر بات کی جائے تو 2,37,000 رجسٹرڈ یہاں پہ ووٹر ہیں۔ عبدالکبیر کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کے پی ایس 120 سے امیدوار ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا کیا یہاں پہ بنیادی مسائل ہیں، کن پر آپ کا فوکس کرنے کا ارادہ ہے اگر عوام اعتماد کرتی ہے تو؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہاں پہ مسئلے بہت زیادہ ہیں، اور ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے، اور اس کے بعد جو ہمارا بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے صحت کا، اس کے بعد بجلی کا، گیس کا۔ یہاں پر سارے مسئلے ہیں جو بنیادی مسئلے ہیں، وہ اس میں کیا بات کروں، ہر مسئلہ ہمارے لیے ایک اہمیت رکھتا ہے جس پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ کون کون سے علاقے جو ہے وہ آپ کے حلقے میں آتے ہیں، اور کہاں آپ جو ہے وہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں تعمیراتی کام کے حوالے سے؟ دیکھیں، سارا ہمارا جتنا پی ایس ہے سب اس وقت متاثر ہے۔ میں کہاں پہ ہر جگہ پہ اپنا فوکس رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارا علاقہ جس میں شامل ہے ضیاء کالونی شامل ہے، مومن آباد ہے، بجلی نگر ہے، اور قید عوام کالونی ہے، ساتھ میں بجلی نگر خیبر کالونی ہے، بسم اللہ کالونی ہے۔ اچھا، یہاں پہ منتخب نمائندے تو پہلے بھی جو ہے وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوتے رہے، ان کی جانب سے کیا کیا کام ہوئے علاقے میں؟ کیا شکوے گلے ہیں لوگوں کے؟ کام ہوا کچھ بھی نہیں، وہ آئے چلے گئے، اور جتنے ہمارا یہاں کے فنڈ تھا انہیں ہڑپ کر کے غضب کر کے کہا گئے، اور یہاں کے جو ایم پی رہ چکا ہے اس نے میرے خیال میں 5 سال میں کچھ کو نام کا بھی پتہ جس کا نام کیا ہے، اس نے یہاں پر ایک کڈر کا ڈھکن بھی نہیں لا کے کسی کو دیا ہے، وہ تو الگ ہی حافظ ہے۔ دیکھیں، ہمارا تو میں نے پہلے کہا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی کا، اس پہ میرا فوکس رہے گا، ہر گھر میں پانی پہنچانے کا۔ یہ ہمارا انشاءاللہ سب سے پہلے ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے۔ بالکل، عبدالکبیر کاکڑ کہہ رہے ہیں کہ مسائل اس قدر زیادہ ہیں کہ پرتعیش مراد یہاں کی عوام نہیں مانگ رہی ہے، بوند بوند پانی کو ترس رہی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر عوام نے اعتماد کیا تو یہ سب سے پہلے علاقے میں آبی بحران کے مسئلے کو حل کرنے پر خصوصی توجہ دیں گے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ کراچی کے دل حلقہ این اے 241 میں مسائل کے انبار ہیں۔ جماعت اسلامی، ایم کیو ایم، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان سخت مقابلہ۔ این اے 241 میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد کی بات کی جائے تو 4,62,000 سے زائد تعداد ہے۔ حلقے میں سول لائن، ڈیفنس اور دیگر شامل ہیں۔ مزید بات کریں گے، عاجز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاجز، بتائیے گا۔ جی ہاں، دیکھیں، یہ جو حلقہ ہے این اے 241، یہ کراچی کا مرکز ہے، دل ہے، یعنی اس میں صدر کا علاقہ بھی آ جاتا ہے، کلفٹن بھی ہے، ڈیفنس بھی ہے، کینٹونمنٹ کا علاقہ بھی ہے۔ تو یہاں مقابلے بھی بڑے دلچسپ ہوتے رہے ہیں۔ یہ سابقہ جو حلقہ ہے اس کا نام این اے 250 تھا، این اے 241 ہے۔ یہاں پہ 2002 سے اگر آپ دیکھیں تو 2002 میں جماعت اسلامی نے ایم کیو ایم سے جیتا تھا، اور پھر 2008 میں ایم کیو ایم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اختیار بیگ سے جیتا تھا، اور پھر اس طرح 2013 میں ایم کیو ایم نے جیتا، 2018 میں پھر پی ٹی آئی نے جیتا۔ اس وقت اس حلقے کے مسائل بہت سارے ہیں۔ یہ شہر کا مرکز ہے، شہر کا دل ہے۔ اس وقت میں بنس روڈ کے علاقے میں موجود ہوں، لیکن مسائل یہاں بے تحاشا ہیں۔ کیا کہیں گے اس علاقے کے مسائل کے حوالے سے، کس طرح کے مسائل ہیں؟ نہیں، مسائل تو یہاں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے گٹروں کا حساب کتاب، یہ پورے بھرے رہتے ہیں، آئے دن پانی، بارش کا پانی کھڑا رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے یہاں ٹریفک کا بھی مسئلہ ہے، ٹریفک جام رہتا ہے، رات کو یہاں پتھارے لگے ہوئے ہوتے ہیں، بہت پریشانی ہوتی ہے خاص کر رہائشی لوگوں کو۔ اچھا، یہ ووٹ مانگنے لوگ آئیں گے تو ان کے سامنے مسائل رکھے ہیں کبھی؟ ان کا کیا ارادہ ہوتا ہے؟ رکھتے ہیں لیکن کوئی فائدہ تو ملتا نہیں ہے، حل نہیں ہوتے۔ گٹروں کی صفائی آپ کیا کہیں گے، کس طرح کے مسائل ہیں آپ کے اس علاقے میں؟ اس علاقے میں مسائل تو بہت ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے یہاں پر جو گٹر سسٹم ہے وہ بالکل جام ہو جاتا ہے یہاں۔ جہاں تک یہ ووٹ کا تعلق ہے، ووٹ یہاں پہ مسائل حل بھی نہیں کرتا۔ پارٹیوں کے آتے ہیں لیکن بہت مشکل ہوتا ہے کام ان کے لیے۔ کہتے ہیں جی بجٹ نہیں ہے، نیچے ہمارے پاس ہے بجٹ ٹرانسفر، تب ہم کام کریں گے۔ آپ کیا کہیں گے، کیسے مسائل ہیں یہاں پر؟ جیسے کہ بھائی صاحب بتا رہے مسائل سب سے بڑا مسئلہ تو گیس کا ہے۔
आतिश जमाली हमारे साथ मौजूद रहिएगा, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। कराची के दिल हल्का NA 241 इसको कहा जाता है, जहां पर मसाइल के अंबार लगे हैं और लोग काफ़ी परेशान हैं। कहते हैं हमें किसी से भी उम्मीदें नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। NA 243 की नेवल कॉलोनी के मकीन ताहाल पानी से महरूम है। हॉक्सबे के करीब बसने वाले लोगों ने जो है वोट के बदले पानी का मुतालबा कर दिया है और इलाका मकीन कहते हैं अब सियासतदानों से उम्मीदें लगाना छोड़ दी हैं। मजीद बताएंगे जुनैद जावेद। हल्का NA 243 के मुख्तलिफ इलाकों में हमने विज़िट किया है। कोई ऐसा इलाका हमें नहीं मिला जहाँ पर बुनियादी मसाइल का शिकार आवाम ना हो। इस वक्त नेवल कॉलोनी के इलाके में मौजूद है। यहाँ पर भी मसला जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक किस्म का है, क्योंकि यहाँ पर पानी पीने का कई सालों से जो है वो मौजूद ही नहीं है। गुज़िश्ता 15 सालों से इस इलाके की आवाम, अगर आप बात करें पीछे की जानिब हॉक्सबे लगता है समंदर किनारे ही बस रही है, लेकिन यहाँ पर फिर भी जो है वो पीने का पानी मैसर नहीं है। कुछ लोग इलाके के हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई ये बताइएगा कि ये तो हॉक्सबे का इलाका भी आपके पीछे है, फिर भी पानी नहीं आ रहा? पानी तो है, कराची में पानी देते नहीं है। यहाँ तो नेवल में तो कभी इन्होंने ज़िंदगी में पानी दिया ही नहीं। ये देखो टैंकियाँ लगी हुई आपके सामने, आप देखा सकते हो कि यहाँ कभी ना पानी देते हैं ना कोई और सहूलत मौजूद है। बस वोट लेने के लिए खड़े होते हैं, वोट दो फिर गायब। अच्छा, आप लोगों को उम्मीद है कौन सी सियासी जमात ऐसी है जिसको आप सपोर्ट करना चाहते हो, या उससे उम्मीद है कि यार ये जमात जो है पानी ले आएगी हमारे? देखें अभी जितनी भी जमात हैं, जो भी इलेक्शन के टाइम हर जमात का हर नुमाइंदा, चाहे वो MNA हो चाहे MPA की सीट पे हो, जब वह इलेक्शन आती है तो सब यहाँ के चक्कर लगाते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, खुलूस का इजहार करते हैं, उसके वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं और हम सालों साल इन चीज़ों को भुगतते रहते हैं। जी बिल्कुल, हल्का NA 243 के तकरीबन 90% इलाके ऐसे हैं जो कि पसमानदा इलाके हैं, और इन पसमानदा इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं वो तहरीक इंसाफ हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, जमात इस्लामी हो, PTI हो, नून लीग हो, JUI हो, कोई भी जमात हो, उन तमाम ही जमात से ये उम्मीद रख रहे हैं कि अगर वो अपना उम्मीदवार जितवा कर कौमी असम्बली में लेकर जाते हैं तो उनको जो है इस बात का पाबंद करें कि वो असम्बली में बैठकर जो है यहाँ के अवाम की आवाज़ बुलंद करें और यहाँ के बुनियादी मसाइल को हल करवाएं। ठीक है। इंसदाद तजावुज़ात का महकमा KMC का है, TMC से मुदाखलत ना करें। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर KMC की रिकवरी को नुकसान पहुँचाने से रोकने के लिए तंबीह। मज़ीद बात करेंगे, जुनैद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, क्या मामला है ये? देखिए जी, मुस्तकिल मुदाखलत की जा रही है कराची में। जो 26 टाउन के चेयरमैन और इनकी इंतजामिया जो है उनकी जानिब से महकमा इंसदाद तजावुज़ात जो है SLG एक्ट 2013 के तहत जो है वो KMC का फंक्शन है, जिसके हवाले से मुताबिक मरतबा मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी ने खत लिखे थे। ये तीसरा खत है जो कि अब तमाम टाउन्स के जो चेयरमैन है उनको लिखा गया और उनको कहा गया है कि KMC को रिकवरी को जो है वो बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि जो फंक्शन KMC का है वहाँ पर जो है टाउन के लोग जाकर जो है वो चालान दे रहे हैं और उनसे चालान की जो रकम है वो अपने बैंक के अकाउंट में जो है वो जमा करवा रहे हैं, जिसकी वजह से KMC को नुकसान पहुंच रहा है। जनरेटर हो, रोड कटिंग हो और जुनैद अपडेट करे तो आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानियों ने दिसंबर में मोबाइल फोन्स की दरामद पर 17 करोड़ 60 लाख डॉलर खर्च कर दिए। रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ हुआ है, जबकि रवा माली साल पहले 6 माह में मोबाइल फोन्स का दरामदी बिल 118% इजाफे से 79 करोड़ डॉलर से जायद रहा। मजीद क्या तफसीलात है जानने के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी, माली मुश्किलात और डॉलर की किल्लत के जो शिकार पाकिस्तान में एक अहम खबर आई है कि पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन की दरामदात में जो है 118% का गुज़िश्ता माली साल के 6 माह के मुकाबले में इजाफा हुआ है। 79 करोड़ 30 लाख डॉलर मालियत के जो है मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान ने दरामद किए हैं, जबकि दिसंबर 2022 के मुकाबले दिसंबर 23 में मोबाइल फ़ोन की दरामद 144% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दिसंबर 22 में 7 करोड़ 30 लाख डॉलर मालियत के मुकाबले दिसंबर 23 में 17 करोड़ 60 लाख डॉलर मालियत के मोबाइल फोन दरामद किए गए हैं। और यहाँ पे देखा जाए पाकिस्तान को करंट अकाउंट के अहम मसाइल का सामना रहा है। गैर मुबादले ज़ख़ायर में कमी की वजह से मुल्क के माशी चैलेंजों में इजाफा हुआ था। पाकिस्तान ने हाल ही में अपनी मईशत को मुस्तहकम करने के IMF के सख्त शराइत पर कर्जे लिए हैं। मोबाइल फोन के लिए खातिर ख्वाह जान के बिल के इंकशाफ ने सवालात उठा दिए हैं और यहाँ जो माहिरीन है उनका कहना है कि मुकामी तौर पर मोबाइल फोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी तरफ जाना होगा और उसके बाद ही पाकिस्तान के दरामदी बिल में कमी हो सकेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
बिजली के भारी भरकम बिलों से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर है। सोलर पैनल की कीमतों में 60% तक कमी आ गई है। 70,000 रुपए का सोलर पैनल 27,000 रुपए में फरोख्त होने लगा है। मजीद बताएंगे काविश मेमन। बिल्कुल देखें, महंगाई की सताई अवाम को रिलीफ मिला है और सोलर पैनल की कीमतों में ज़बरदस्त कमी देखी जा रही है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा कितनी कमी हुई है और उसकी क्या वजूहत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन लास्ट टाइम जो हमारी आपसे बात हुई थी उससे अभी तक तकरीबन 50 से 60% तक कमी आई है तमाम सोलर पैनल्स के अंदर। पहले जो हमारा 550 545 जो था 70,000 रुपये का था, तो वो अभी जस्ट 27,000 के अंदर अवेलेबल है। तक वजूहत के इंपोर्ट्स काफ़ी अच्छी हैं। अभी इंपोर्ट्स जो है वो क्लियरिंग हो गई है, क्लियरिंग काफ़ी ज़्यादा इजीली हो गई है। और जो टैक्स वगैरह इन्वर्टर्स वगैरह पे भी, तो उस पर भी गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया था, इस वजह से काफ़ी बेहतरी आई है। ख़रीदार माशाल्लाह जाहिर सी बात है पहले से ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल देखें, दुकानदारों का कहना है कि इंपोर्ट में हाई रुकावटें दूर हुई हैं, तो जिसकी वजह से सोलर पैनल की कीमतों में 60% तक कमी हुई है। बहुत शुक्रिया। पीपल्स बस सर्विस की मजीद 30 नई बसें सड़कों पर आ गई हैं। नई बसों के बाद पीपल्स बस सर्विस की बसों की तादाद 289 हो गई है। तमाम नई बसों को एक ही रूट पर रखा गया है। इस पर मजीद बात करेंगे। अक्सा शायद हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत का जो पीपल्स बस सर्विस का मंसूबा है, पीपल्स बस सर्विस की मजीद 30 नई बसों को सड़कों पर लाया गया है, सड़कों पर उतार दी गई हैं। जो 30 बसें जो है वो कोर्ट पर फंसी हुई थी, नई 30 बसों के बाद जो है वो पीपल्स बस सर्विस की तादाद जो है वो 289 हो गई है। नई आने वाली तमाम 30 बसों को एक ही रूट पर जो है वो रखा गया है। नई बसों का जो रंग है वो सब्ज होने की वजह से जो है उनको एक रूट पे रखा गया है। नई ग्रीन बसें जो है वो R1 के नाम से जो है वो मॉडल कॉलोनी से टावर तक जो है वो चलाई गई हैं। इसके अलावा R1 पर चलने वाली जो पहली लाल बसें थी उनको जो है वो दीगर रोड पे चला दिया गया है। जो नई 30 बसें आएंगी, इसमें ग्रीन बसों में 12 बसों की 12 जो बसें हैं वो 17 मीटर की हैं, और जो दूसरी बसें हैं वो दूसरी जो 12 बसें हैं वो 9 मीटर की हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कितने पैसेंजर जो है वो 9 मीटर की बस में सफर कर सकते हैं, तो 9 मीटर की बस में जो है वो 60 लोग सफर कर सकते हैं, और जो दूसरी 12 मीटर की बस है उसमें एक वक्त में 90 लोग जो है वो सफर कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुबीना टाउन थाने के सामने दूध की दुकान पर नामालूम मुलजमान की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है इब्तदाई तौर पर वाकया टारगेट किलिंग का लगता है। मजीद जानते हैं शाहजेब हुसैन से। जी बताएगा। जी बिल्कुल, शहर अकायद में टारगेट किलिंग के वाक़यात में फिर से इजाफा होने लगा। रात गए अबुल हसन अस्फहानी रोड पर, जिस मुकाम पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है 2 नामालूम मुसल्लह मुलज़मान ने जो है फायरिंग की, और फायरिंग के नतीजे में 2 शहरी जो है जाँ बहक जबकि 3 अफराद जो है ज़ख्मी हुए। इस वक्त इस जाए वक़ुआ पर मौजूद हूँ जहाँ फायरिंग का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि जो मकतूल की जो शनाख्त हुई वो अब्दुल बारी अयूब के नाम से की गई, जबकि जो ज़ख्मियों में फ़रहान, अताउल्ला और इसी तरीके से जो है बताया जाता है कि उनका एक और मुलाजिम जो है इसमें जो है गोलियों का निशाना बनाया। यहाँ पर जो है दुकानदार मौजूद, हम उनसे बात करते हैं। ये बताएगा कि जब फायरिंग का वाक़या पेश आया उस वक्त यहाँ पर क्या माहौल था, क्योंकि सामने ही बिल्कुल थाना है और पुलिस जो है सिक्योरिटी देने में नाकाम दिखाई देती है। क्या कहेंगे आप? क्या कह सकते हैं भाई, इसमें अल्लाह माफ़ करे। मतलब दिन दहाड़े जो है ये काम हो रहा है, थाना सामने, कोई पुसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब इतने शरीफ लोग जो कि पूरी मार्केट उसकी गवाही देगा, कितने शरीफ लोग, वो किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते हैं, उन पे फायरिंग हो रही है कि किसी से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, तो उसके बावजूद ये काम हो रहा है। और थाना सामने, आप ये देखें कितनी बड़ी दिलेरी है कि अगले करके जा रहे हैं। मकतूल अब्दुल बारी का जो है नमाज जनाजा जो है नमाज ज़ोहर के बाद 2 बजे नुमान अपार्टमेंट है जहां पर स्काउट कॉलोनी में अदा की जाएगी। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि जाए वक़ुआ से गोलियों के 16 खोल मिले हैं, जबकि दूसरा जो मुलाजिम था जिसकी शनाख्त अयूब के नाम से की गई थी उसकी मैयत वर्षा के जो है हवाले कर दी गई है। उसका जो आबाई ताल्लुक़ है वो मीरपुर ख़ास माथेलो से बताया जाता था, और उसकी जो मैयत है वो वर्षा के पास रवाना कर दी गई है। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि इस वाक़े की मज़ीद जो है तफ्तीश का अमल जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एयरपोर्ट के करीब घर में कत्ल होने वाली माँ और 3 बच्चों की मैयतों को न्यू रिजविया इमाम बारगाह पहुँचा दिया गया। निदार रिजवी और इसके 3 बच्चों जिब्राइल, मिकाइल और उम्मे हानी की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। मज़ीद अपडेट करेंगी अनुषा जाफरी।
जी बिल्कुल, देखिए एयरपोर्ट के करीब जो है वो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि उसके शौहर ने अपने 3 बच्चों और अपनी बीवी को जो है कत्ल करके खुदकुशी की थी। आज जो है उनकी नमाज़ जनाज़ा अदा की जाएगी। जो 3 बच्चे हैं जिब्राइल, मिकाइल और उम्मे हानी, उनकी लाशों को न्यू रिज़विया इमाम बारका जो है वो लाया गया है। यहाँ पर जो है वो नमाज़ जनाज़ा अदा की जाएगी और उनकी जो निदा रिज़वी है, उनकी जो डेड बॉडी या मैयत है, उनको भी जो है वो यहाँ पर लाया गया है। ज़ोहर के बाद नमाज़ जनाज़ा अदा होगी और जो जिसने खुदकुशी की है, जो बच्चों का बाप था, उसकी डेड बॉडी को मलिर काला बोर्ड जो है वो ले जाया गया है। 4 मैयतें यहाँ पर मौजूद हैं और सर्द खाने में मौजूद है इमाम बारगाह के, जबकि कहा यह जा रहा है कि यहीं पर उनको जो है वो गुस्ल दिया गया है और ज़ोहर के बाद नमाज जनाजा अदा होगी, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो उनके रिश्तेदार हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जो है वो जारी है। कुछ खवातीन अभी यहाँ पर पहुंची हैं। फिलहाल जो इनके जो बच्चों के जो बाप थे, जिसने खुदकुशी की है, वो जो है वो उसकी जो लाश है, जो मैयत है, उनकी वो मलिर काला बोर्ड ले जाई गई है। जबकि अगर हम बात करें पुलिस की, तो पुलिस की जानिब से जो है 174 की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है, जबकि मुबैना लेन देन के मामले पर जो है वो ये मामला पेश आया था। पुलिस की जानिब से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं और मजीद तहकीकात का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। इस वाक़ये का मुकदमा जो है वो ताहाल जो है वो दर्ज नहीं किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक पुलिस रिपोर्ट्स को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को लापता अफराद के मामले में मुदाखलत करने की हिदायत कर दी। मज़ीद जानते हैं मुमताज़ जमाली से, जी बताएगा। देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में और सिंध हाई कोर्ट कराची में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक़ दरख्वास्तों पर 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है और समाअत के दौरान पुलिस की जानिब से जो पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई हैं वो अदालत ने गैर तसल्ली बख्श करार दे दी हैं। अदालत ने जो है बेशतर लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक़ आदम बाजियाबी पर और उनकी रिपोर्टों को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है। साथ ही साथ अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को लापता अफराद के मामले में भी मुदाखलत करने की हिदायत कर दी है। अदालत ने हुक्म दिया है कि देखा जाए कि लापता अफराद की बाजियाबी आखिर क्यों नहीं हो रही और ये लापता अफराद कहाँ हैं। साथ ही साथ अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए कि अदालत ने जो लापता शहरी जिसमें इमरान है, फैज़ान अली है, बहादुर है, जुनैद अहमद और दीगर की बाजियाबी के लिए इक़दाम करने की भी अदालत ने हिदायत कर दी है। अदालत ने मोहम्मद यूनुस, उमेर जमा, अब्दुल हसन, सईदा और दीगर लापता अफराद को फौरी तौर पर बाजियाब कराकर रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश करने की हिदायत कर दी है। जबकि कई लापता अफराद के अहले खाना भी जो हैं वो आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत के अंदर आहो बका करते हुए अदालत से इस्तदा किया है कि उनके प्यारे जो हैं वो फौरी तौर पर बाजियाब कराए जाए। लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम मुतल्लिका हुकाम से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करते हुए दरख्वास्तों की जो समाअत है वो 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। भारतीय खुफिया एजेंसी से फंडिंग और कराची में दहशतगर्दी का केस, FIA की जानिब से मुकदमा कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में ये समाअत हुई। अदालत ने फ्रीकेंट की वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। मजीद बात करेंगे मुमताज़ जमाली से, जी मुमताज़। देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में ये अहम केस जो है वो समाअत हुई है। रॉ फंडिंग से मुतल्लिक एक केस की समाअत हुई थी जहां पर तमाम फरीकैन के वकला जो हैं वो अदालत में पेश हुए हैं। लिहाजा अदालत ने इन तमाम फरीकैन। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। PIB कॉलोनी में लूटमार करने वाले मुलजमान से मुबैना पुलिस मुकाबले का ये मामला है। मजीद इस पर बात करेंगे जवाद आसिफ से, जी जवाद बताएगा। जी बिल्कुल, देखें PIB कॉलोनी में लूट मार करने वाले मुलजिमान से मुबैना पुलिस मुकाबले का मामला पुलिस ने गिरफ्तार ज़ख्मी डकैत हारिस उर्फ साहिल को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश कर दिया है, जहां अदालत ने तफ्तीशी अफसर के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सादिर करते हुए आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। पुलिस के मुताबिक 2 तरफा फायरिंग में ये एक डकैत ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ था, जबकि मुलजिमान के 3 साथी जाए वक़ुआ पर पुलिस पर फायरिंग करते हुए मौके से फ़रार हो गए थे। गिरफ्तार मुलजिम के मुताबिक मफरूर मुलजिमान के नाम सुल्तान, अकरम और अब्दुल्ला हैं। पुलिस के मुताबिक जो है मुलजिमान शहरी से लूट मार कर रहे थे कि गश्त पर मौजूद पुलिस पहुंच गई। मुलजिमान ने पुलिस को देखकर फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक ये डकैत ज़ख्मी हुआ जबकि बाकी फ़रार हो गए। ये शहरियों से लूट मार कर रहे थे। मुलजिम से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। वाक़े का मुकदमा थाना PIB में दर्ज किया गया। जी रुख करेंगे NA 243 सुल्तानाबाद में, जहाँ पर गैस नायाब हो गई है। इस पर अपडेट करेंगे फरहान खान।
जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो कौमी असम्बली के हल्का NA 243 के अंदर मौजूद हूँ। इलाका सुल्तानाबाद, ये लगता है इस इलाके के अंदर मसाइल की बात की जाए वो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन सबसे बुनियादी और जो सबसे अहम मसला इस इलाके का है वो जो है गैस जो है वो इस इलाके में जो है नायाब हो गई है। इस इलाके में अगर मैं वोटर्स की तादाद की बात करूँ तो 4,49,733 वोटर्स पर मुश्तमिल ये इलाका गैस की जो है वो शदीद बहरान की शिद्दत में है। इस वक्त जो हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे भी तफसीलात ले रहे हैं। मुझे बताइएगा सर, कब से इस इलाके में जो है गैस नायाब हुई है? इस इलाके में तकरीबन 6.5 साल से जो है ना गैस नहीं है। ये लोग जो है ना ये सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल जो है ना वो लकड़ी भी नहीं मिलते हैं। फिर ये गरीब लोग जो है ना बस पता नहीं कैसे गुजारा करते हैं, अल्लाह बेहतर जानते हैं। आमदन भी लोगों का नहीं है, किराया 8,000 9,000 रुपए किराया है लोगों का। 6.5 साल से गैस नायाब है, तो पिछले 5 साल जिसकी हुकूमत थी जो इस इलाके से मुंतखब हुआ, तो उन्होंने क्या काम किया? यार यकीन मानो, मैं कसम के साथ कह सकता हूँ जो उन लोगों ने कोई काम नहीं किया, या पीपल पार्टी हो या PTI वाला हो, सिर्फ वादे पे वादे करते रहते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते, अमल नहीं करते उसके ऊपर। मैं तो आवाम को यही कहता हूँ जो भाई इन लोग वोट नहीं दे, ये सारा झूठे हैं। जितने भी मतलब जो है ना हमारा तो दिल भर चुका है, मतलब किसी को वोट नहीं दे। जी बिल्कुल, इस वक्त जो हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद थे, उनसे भी आपने बात सुनी कि खासा नाराजगी का इजहार करते हैं आइंदा आने वाले इंतखाबात से। अगर मैं इस हल्के से उम्मीदवारों की बात करूं तो NA 243 की नशिस्त से जो है वो पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल और MQM के जो है हुमायूं उस्मान और ANP के जो है वो हाकिम खान जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं। लेकिन इलाके में जो है गैस का बहरान कौन हल करेगा, ये तो आइंदा आने वाले इंतखाबात ही बताएंगे। जी, इंटरमीडिएट हिस्सा अव्वल आर्ट्स, रेगुलर, प्राइवेट और कॉमर्स के सालाना नताइज का ऐलान कर दिया गया है। इस सवाल से मजीद बात करेंगे। सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा कैसा रिजल्ट आया है? हाँ जी बिल्कुल, देखें इंटरमीडिएट हिस्सा अव्वल आर्ट्स, रेगुलर, प्राइवेट और कॉमर्स के सालाना नताइज का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। बहुत ही ताकीद से जो है आला तालीमी तालीमी बोर्ड कराची ने कॉमर्स, प्राइवेट और आर्ट्स, रेगुलर और प्राइवेट के नताइज का ऐलान किया है। आर्ट्स रेगुलर के इम्तहानात में 11,736 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन हासिल की थी, जबकि 11,046 उम्मीदवार इम्तहानात में शरीक हुए। जबकि मैं आपको ये भी बताऊं कि 11,736 तलबा में से सिर्फ और सिर्फ 2,200 से ज्यादा उम्मीदवार जो हैं तमाम पर्चों में कामयाब हो सके। बकिया तमाम तर जो तलबा व तालिबात हैं उनके पर्चे जो हैं वो रुके हैं। इसके अलावा अगर ओवरऑल रेशियो के हवाले से बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ इस दफा जो कामयाबी का तनासुब जो बना है तो सिर्फ 19% जो बच्चे हैं इम्तिहान तमाम पर्चों में कामयाब हो सके हैं। इसके अलावा आर्ट्स प्राइवेट के इम्तिहानात में 3,049 तलबा ने रजिस्ट्रेशन हासिल की थी, जिसमें 2,700। ठीक है, सैयद ज़ुबैर राशिद हमें तफसीलान अपडेट कर रहे थे, आपको बहुत शुक्रिया। खेल के मैदान से खबर है, असजद इकबाल और अवैस अल्लाह ने कौमी स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जावेद इकबाल अपडेट करेंगे। जी, मैं नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर कौमी स्नूकर चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। सेमीफाइनल मरहला मुकम्मल हो गया है। असजद इकबाल और उवैसुल्लाह मुनीर ने जो है फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। हमारे साथ मौजूद टूर्नामेंट डायरेक्टर नवीद कबाड़िया साहब। नवीद भाई, क्या रहा आज मैच के नताइज, कैसे रहे तवक्कात के एन मुताबिक या बरक्स? नहीं, नताइज तो आज वन साइडेड ही रहे। नसीम अख्तर भी 6-1 लॉस्ट हो गए और सुहेल भी 6-2 लॉस्ट हो गए। नॉर्मली ऐसा सेमीफाइनल में होता नहीं है, एटलीस्ट 6-4 6-3 होता है, या 9 का सेशन हो तो 5-3 इस तरह से होता है। बट इस दफ़ा दोनों ही मैच जो है वो वन साइडेड हो गए। इस बार देखने में आए काफ़ी बड़े खिलाड़ी हैं, सेमीफाइनल से पहले फारिग हो गए, जैसे वर्ल्ड चैम्पियन एहसन रमज़ान, मोहम्मद आसिफ, सज्जाद वगैरह, काफ़ी जो बड़े नाम थे वो ढेर हो गए। नहीं, आप ये तो खैर रिकॉर्ड वाइज आप कहेंगे तो ऐसा ही है, बट अब हर साल जो है वो चेंजिंग आती जा रही है। लास्ट ईयर भी उवैस जो है वो सेमीफाइनल खेले थे, हालांकि उससे पहले कभी नहीं खेले थे। और अज़द चूँकि 2 साल थे नहीं, यहाँ पाकिस्तान में नहीं थे, तो अज़द तो खैर पुराना नाम है, वो तो हमेशा पहले भी फ़ाइनल खेल चुके हैं। उवैसुल्लाह मुनीर जो है वो फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, बट लास्ट ईयर वो सेमीफाइनल खेले थे, सेमीफाइनल हारे थे वो। और जहाँ तक बात है बाकी खिलाड़ियों की, क्योंकि कंपटीशन जो है ना वो दिन ब दिन टफ होता जा रहा है। आप देख रहे हैं नए प्लेयर जो है वो सीनियर्स के साथ टफ मुकाबला देते, तो लिहाजा इसी वजह से जो है वो ये लोग आगे आ गए। सुना आपने कि यानी नया टैलेंट सामने आ रहा है, यंग जो खिलाड़ी अब ज़्यादा बेहतर खेल रहे हैं सीनियर्स के मुकाबले में, तो यकीनन खिलाड़ियों की रैंकिंग वो अपनी बेहतर भी कर रहे हैं। अब फाइनल में मुकाबला होगा असजद और उवैस का, देखते हैं ये टाइटल कौन अपने नाम करता है। बहुत शुक्रिया।